Hello guys, welcome to EduTap. I am your mentor Prakash. I am a company secretary and a law graduate, and a lot of aspirants have been requesting us to come out with the video regarding the strategy for phase 1 of this examination, that is SEBI grade A legal officer examination, right? So that is why we are here in front of you with the winning strategy for phase 1 of SEBI grade A legal officer examination. So let's discuss the today's content. So before making any strategy, before discussing any strategy, you have to have idea about the preparation, about the pattern of phase 1 of this examination, right? So if we talk about the phase 1, so phase 1 consists two papers, that is paper 1 and paper 2, right? So यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 के कंटेंट्स क्या है, प्लस इनका वेटेज क्या है, इनका कट ऑफ क्या है. Then only you can make any strategy, then only you can ensure some strategy which will help you in clearing this examination, right? So paper 1 की अगर हम बात करें, so paper 1 will consist 4 components, that is general awareness, English language, quantitative aptitude or test of reasoning, right? So it will consist 4 components in the form of GA, English language, quant and test of reasoning. And you will be given 60 minutes time to solve the 80 questions, right? So it will consist of 80 questions, 20 questions each component. ठीक है, तो यहाँ पे सारे components में 20 questions होने वाले हैं. That is you have to attempt 80 questions which will be of 100 marks in 60 minutes. तो एक hour की duration में you have to solve 80 questions, right? जिसका cut off होने वाला है 30%. So 30% cut off है. This is the main thing which you need to focus here, that the cut off is 30%, right? Similarly, we talk about paper 2. So you all are aware about paper 2. We are discussing about legal component. So in paper 2, you have to solve 50 questions in 40 minutes, right? 50 questions in 40 minutes and 50 questions will be of 100 marks. And the cutoff for paper 2 is 40%, right? तो आपको 40% स्कोर करना है in order to clear paper 2, और आपको 30% स्कोर करना है मिनिमम in order to clear paper 1, right? बट यहाँ पर एक फैक्टर है that you have to score 40% in aggregate, ठीक है? तो aggregate cutoff आपका 40% रखा गया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स कंबाइन करने के बाद you have to score 40% marks out of 200. That is, you have to score 80 out of 200 if you want to clear phase 1 of this examination, right? यहां पर एक चीज ये भी है कि आपको 80 मार्क्स स्कोर करना है, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अगर 80 मार्क्स स्कोर करते हैं, दे ऑल विल बी प्रमोटेड, दे ऑल विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 2. ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि फेज 2 में जो भी फेज 1 क्लियर करेंगे, दैट इज जो भी मिनिमम स्कोर 80 मार्क्स लेकर आएंगे, दे ऑल विल बी प्रमोटेड टू फेज 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी फैक्टर को ध्यान रखते हुए वी विल मेक अवर स्ट्रेटजी, वी विल प्लान अवर स्ट्रेटजी. हमें किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है फेज 1 एग्जामिनेशन को. सो यहां पर ये सारी चीजें दी हुई है. 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच यू नीड टू रिमेंबर. 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है. रिमेनिंग यहां पे सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है रिगार्डिंग द कट ऑफ, एग्रीगेट कट ऑफ और इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर बोथ पेपर्स. ठीक है, और यहां पर लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स हु क्लियर फेज 1 शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2. ठीक है, तो जिन्होंने भी जिनका भी एग्रीगेट 80 मार्क्स हो जाएगा, दे ऑल विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन. वन मोर एडवांटेज in phase 1, that is, इन चारों कंपोनेंट्स में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, राइट? कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें. आपको इन चारों कंपोनेंट में मिलाकर यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 30 मार्क्स. This is the I can say the great advantage for paper 1, that you have to score minimum 30 marks विदाउट एनी सेक्शनल कट ऑफ. ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. आप चाहें तो जनरल अवेयरनेस में आप 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग 29 मार्क्स हम इन 3 कंपोनेंट में स्कोर कर सकते हैं. सो ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ और वीक एरियाज कौन से हैं, राइट? सो अब हम डिस्कस करते हैं पेपर वाइज स्ट्रेटेजी की. पेपर 1 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फेज 1 क्लियर करने के लिए, और पेपर 2 की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फेज 1 क्लियर करने के लिए, राइट? सो वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर पेपर 1. So the very first thing is analyze previous year questions. आपको previous year questions analyze करने ही करने हैं at any cost, right? PYQs are available free of cost. The link of which is given in the description box below, and you have to sign up. Then you can easily access the previous year questions related to paper 1. ठीक है,
तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है दैट यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं राइट एग्जामिनेशन में, और उनका पैटर्न क्या है, उनका लेवल क्या है, वेदर दे आर इजी टू मॉडरेट और दे आर डिफिकल्ट। सो दीज ऑल डायमेंशंस यू विल गेट टू नो अबाउट राइट। तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी व्हेन यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हेन यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो एटलीस्ट 2 to 3 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस you have to solve so that you will get the idea what kind of questions are being asked in the examination of SEBI grade A, right? Next thing is sharpen your strengths plus manage your weak areas। ठीक है, तो पेपर 1 अगर हम स्पेसिफिकली बात करें so you have to score at least 30% मार्क्स। इसका मतलब आपको 100 में से 30 मार्क्स लेकर आने हैं राइट। अब इस 30 मार्क्स को लाने के लिए यू डू नॉट नीड टू फोकस टू मच टाइम एंड एनर्जी इन पेपर 1, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। सो आपको पेपर 1 के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। रेदर आपको क्या फोकस करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, उसको और शार्पन करना है राइट। फॉर एग्जाम्पल जनरली एस्पिरेंट्स के साथ क्या इश्यूज होता है, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, किन्हीं एस्पिरेंट्स का क्वांट एंड रीजनिंग स्ट्रांग होता है राइट, किन्हीं एस्पिरेंट्स का इंग्लिश और जीए स्ट्रांग होता है राइट। तो जनरली 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं जहां पर किन्हीं कैंडिडेट्स का क्वांट और रीजनिंग स्ट्रांग होता है और किन्हीं कैंडिडेट्स का इंग्लिश और जीए स्ट्रांग होता है राइट। सो आपको यहां पर क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है राइट। सो आपका जो भी स्ट्रेंथ एरिया यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट। सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस वाला कंपोनेंट, सो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इन कंपोनेंट पर ज्यादा फोकस करना है। और अगर इन कंपोनेंट में आपने ज्यादा फोकस कर लिया सो यू विल हैव 40 क्वेश्चंस, ठीक है, आपके पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे इन दोनों कंपोनेंट में। तो आपको वो 40 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी कि आपने सही मार्क किया होगा, बिकॉज these areas are your strength areas right। उसके बाद you have to focus on your weak areas, quant and reasoning। और यहां पर आपने अगर कुछ questions भी attempt कर दिए then you can easily score cut off that is 30 marks right। so I hope you got the clarity मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। so you have to sharpen your strengths plus manage your weak areas। तो जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है वहां पर आप फोकस करें। अगर आपका क्वांट और रीजनिंग स्ट्रेंथ एरिया है तो आप उसको और ज्यादा फोकस करें और वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू क्लियर दिस कट ऑफ, ठीक है। और अगर ये वाला कंपोनेंट अगर आपका स्ट्रेंथ एरिया सो यू हैव टू फोकस अकॉर्डिंगली इन दिस कंपोनेंट इटसेल्फ। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। नेक्स्ट इज डिवोट योर टाइम एंड एनर्जी वाइजली बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। गाइज एक चीज आप और समझिए कि अगर आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आप सपोज आपने 90 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया, ठीक है, 90 आउट ऑफ 100 स्कोर आपने कर लिया। एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने 30 आउट ऑफ 100 ही स्कोर किया। You both will be appearing in phase 2, right? You both will be appearing in phase 2. That is why you are not expected to devote much time for preparation of paper 1, ठीक है। पेपर 1 में आपको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। रेदर आपको इस पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप इजीली थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएं और कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं करना है। यहां पर कोई भी मार्क्स फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस इन विच यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 ओनली, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। कई बार हम बहुत ज्यादा फ्लो में इमोशनल हो जाते हैं और हम चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं। सो यहां पर वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है। अल्टीमेट गोल जो है आपका दैट इज यू हैव टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। ये आपको फोकस रखना है। आपको किसी भी एक हर स्टेप में आपको ये चीजें भूलनी नहीं है, ये चीजें याद रखनी है। दैट अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर राइट। सो ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे डिवोट नहीं करना। रेदर आपको जो टाइम और एनर्जी है वो आपको पेपर 2 में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेपर 2 विल हेल्प यू इन द सिलेक्शन ऑफ इन दिस एग्जामिनेशन राइट। क्योंकि अगर आप पेपर 2 में ज्यादा फोकस करते हैं then in that case that will be counted for the purpose of merit and your chances of becoming officer, your chances of getting selected will be higher, ठीक है। तो आपको पेपर 2 में ज्यादा फोकस रखना है। तो ये चीज आपको अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करनी है कि आपका पेपर 1 में कौन से स्ट्रेंथ एरियाज हैं, किस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं, और पेपर 2 में आपको उसके अकॉर्डिंगली टाइम और एनर्जी डिवोट करना है। सो ये सब्जेक्टिव इशू है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। नेक्स्ट इज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पेपर 1, ठीक है। आपको पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज। अगर आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि 30 मार्क्स से मैं ऐसे ही स्कोर कर लूंगा, आई डू नॉट नीड एनी प्रैक्टिस, ठीक है। वो ऐसी गलती कभी ना करें। आपको एटलीस्ट पिछले 2-3 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करें,
ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं अभी, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। बट इस पेपर को अंडर एस्टिमेट ना करें, अदरवाइज आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है, जो पूरी आपकी एनर्जी जो आपने पेपर 2 में लगाई हुई, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आपने 30 मार्क्स नहीं स्कोर किए तो। सो आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना है। यू हैव टू बैलेंस, ठीक है, आपको यू हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन दीज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, आपको यहां पर बैलेंस करके चलना है, वो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग ही होगा। देन अटेम्प्ट हाईएस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 30 मार्क्स के लिए तो आपने 30 मार्क्स के लिए ही बस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना बंद कर दिए। ऐसी मिस्टेक मत करना है, आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अटेम्प्ट एज मच पॉसिबल एज यू कैन। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ब्लाइंड गेस लगाना है, बिल्कुल भी नहीं, ब्लाइंड गेस आप मत मारना। कैलकुलेटिव वे में आपको चीजें अटेम्प्ट करना है और हाईएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जितने आपसे हो जाए वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो आई थिंक द मैसेज इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट बी इगोइस्टिक वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर 1 में, वो सारे इक्वल मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल रहेंगे। आपको यहां पर बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं होना कि मैंने एमएससी मैथ्स किया और ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे बिल्कुल भी थॉट्स मत लेकर आना। वहां पर सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। आपको एक चीज रूल बना ले, आपकी क्वांट के किसी भी क्वेश्चन में मैं 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर 40 सेकंड में वो चीज मुझे लग रही सॉल्व हो जाएगी और अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं तो ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज स्किप कर दें आप उसको, ठीक है। सिंपली थंब रूल आप बना लें, 40 सेकंड में अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो क्वांट क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा। तो यहां पे बिल्कुल भी ईगो लेकर मत आना कि मैं इतना एजुकेटेड हूं, मैंने मैथ्स में डिग्री की है या कोई भी डिग्री आपने की हुई है। उस ईगो को आपको साइड में रखना है, उसके बाद ही एग्जाम में अपीयर होना है। तो उसके साथ ही आप तभी आपके चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे कि आप पेपर 1 क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। देन बिगिन अटेम्प्टिंग एग्जाम विद द मोस्ट कंफर्टेबल सेक्शन, ठीक है। जो भी आपका मोस्ट कंफर्टेबल सेक्शन है, सपोज आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, सो आपको इंग्लिश से ही स्टार्ट करना है। अगर आप क्वांट में है तो आपको क्वांट में स्टार्ट करना है। अगर आप जीए और रीजनिंग में है तो आपको अकॉर्डिंगली वहां से स्टार्ट करना है। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस विद द मोस्ट कंफर्टेबल सेक्शन, ठीक है। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उसको पहले अटेम्प्ट करें और ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच पॉसिबल क्वेश्चन एज यू कैन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यूज, आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं गाइस पेपर 1 के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में आप बिल्कुल भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपके। इसका आइडिया है कि वहां पे आपको 60 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दिस यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में यू हैव टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। वहां पर टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, थोड़ा टफ आ जाए। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है और वो प्रिपरेशन कहां से आएगी आपकी, by solving MCQs. If you solve a lot of MCQs, then you will get the idea how to manage the time, how much time you need to spend in any particular section, ठीक है। आपको किसी भी एक सेक्शन में जो कि क्वांट, रीजनिंग, जीए और आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, उसमें आपको कितना टाइम स्पेंड करना है और कितने टाइम में you are able to solve most of the questions. So these all dimensions you will have clarity when you solve the MCQs. So try to solve as much possible MCQs as you can before your actual examination, right? So I hope you got the idea. यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। So this was about the paper 1. I hope you got the idea कि पेपर 1 में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। Now let's discuss about the paper 2. So अगर हम पेपर 2 की बात करें तो अगेन सेम फॉर्मूला दैट यू हैव टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको एनालाइज करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। फेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लीगल के हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड। सो अगर आपको वो लिंक अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो अर्लियर, सो यू कैन गो टू अवर प्लेलिस्ट एंड यू कैन फाइंड दिस लेक्चर रिलेटेड टू फेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, लीगल के पेपर 2 वाले। सो आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका नेचर क्या है, उसका लेवल क्या है। दिस यू हैव टू एनालाइज बाय सॉल्विंग बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फेज 1 प्लस स्टिक टू इट, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस जो भी आपका फेज 1 का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। और आपको जो भी सिलेबस आपका मेंशन है वहीं तक आपको कवर करना है, उससे ज्यादा कवर नहीं करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज एक्ट में चैप्टर 7 अगर आपका पार्ट नहीं है
आपके सिलेबस को तो आपको उसको नहीं कवर करना है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज कोई भी चैप्टर या कोई भी पार्ट अगर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, देन यू डू नॉट नीड टू कवर दैट। आपको ये चीज आप माइंड में सेट कर लें कि आपको वही कवर करना है जो सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड इफ यू टॉक अबाउट लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज और वेटेज के साथ चीजें दी हुई है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। So cover the entire syllabus of phase 1 and stick to it. Whatever topics are mentioned in the syllabus, you have to stick to it, ठीक है। उससे ज्यादा आपको नहीं प्रिपेयर करना है। आप अगर उन्हीं चीजों को प्रिपेयर कर लें और उसी को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन आ भी गए बाहर से तो नो इश्यूज, आपको फोकस ये रखना है कि आप मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही तरीके से करके आ रहे हैं। सो यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस एंड यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। देन फिनिश द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। आपको हाईएस्ट वेटेज का जो टॉपिक है उसको पहले फिनिश करना है। लाइक फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज लॉज की अगर हम बात करें, ठीक है, सिक्योरिटीज लॉज, कंपनीज एक्ट हो गया आपका एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम इन तीनों पार्ट को मिला लें अगर फेज 1 के लिए, तो दिस कंसिस्ट अराउंड 40 to 45% ऑफ सिलेबस, ठीक है। 40 to 45% सिलेबस, ये तीन टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो कवर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फेज 1 के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू फिनिश द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले आपको स्टार्ट ही यहां से करना है। इधर यू कैन स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट और यू कैन स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट लॉज, दैट इज सेबी एक्ट, सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको वेटेज के अकॉर्डिंग चलना है। इसका पूरा डिटेल प्लान हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में। इफ यू वांट टू सी दैट यू कैन रेफर द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहां पर हमने पूरा 40 डेज प्लान डिस्कस किया हुआ, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है वो सारी चीजें, ठीक है। और गाइस एक चीज और, आपको पेपर 2 जो फेज 1 के लिए प्रिपेयर करना है उसके लिए आपकी जो मेंटालिटी, जो माइंडसेट है वो फेज 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलेबस वाला जो कंटेंट है दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फेज 1, बट उस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2। क्योंकि फेज 1 तो आप अगर आपने फेज 2 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया तो आप फेज 2 तो अगर आपने फेज 2 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया देन इन दैट केस फेज 1 यू आर गोइंग टू क्लियर, बिकॉज फेज 1 में 40% कट ऑफ चाहिए आपको, ठीक है। You need 40% मार्क्स टू क्लियर फेज 1, पेपर 2 ऑफ फेज 1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको जो भी टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो उसको पेपर 2 के लेवल के हिसाब से, फेज 2 के लेवल के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो इन दैट केस यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू क्लियर द फेज 1। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट इज डू नॉट कवर फेज 2 एक्सक्लूसिव टॉपिक नाउ। आपको इस मोमेंट में, since exam is about to be conducted in within 40 days, so in that case in present time you do not need to cover the phase 2 exclusive topics. Whatever topics are exclusive for phase 2 you are not supposed to cover this at this moment, ठीक है। आपको इस मोमेंट में वो चीजें कवर नहीं करनी है, स्किप कर दें आप उसको। अभी you have to cover only phase 1 topics जो मैं आपके सिलेबस में मेंशन है, and immediately after phase 1 you have to cover the remaining topics which are the part of phase 2 only. So this we have already discussed in previous sessions, so you can refer the link given in the description box to watch the session related to it. Now all question is of equal marks, keep this in mind। तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है दैट आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होने वाले हैं और आपको 40 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, राइट, 2 मार्क्स के। तो 50 into 2 100 मार्क्स। सो सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होने वाले हैं। रीड करें, अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है फॉरगेट इट, छोड़ दें उसको, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, अदरवाइज आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पेपर आपका छूट जाना है, ठीक है। सो आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में क्वेश्चन समझ में आ गए देन ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को स्किप करें अभी, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जब आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे देन आप वापस से उन क्वेश्चंस पर आए विच यू हैव लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, rather the most important aspect, that you have to solve a lot of MCQs. I have been saying throughout the sessions that you have to solve a lot of MCQs, क्योंकि try to understand one thing that 40 minutes में 50 questions, ठीक है, 40 मिनट में 15 questions is a challenging task। तो आपको इस चैलेंज को अगर पूरी तरीके से इस चैलेंज को ओवरकम करना है, so in that case you have to solve a lot of MCQs। आप जितने ज्यादा MCQs सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ही आपका एडवांटेज होगा और उतना ही फास्ट आप एग्जाम में वो चीज सॉल्व कर पाएंगे।
So that is why I have been saying throughout the session that you have to solve a lot of MCQs for every topics mentioned in your syllabus, ठीक है, चाहे वो phase 1 हो चाहे वो phase 2 हो, ठीक है, आपको सारे टॉपिक्स के लिए आपके MCQs सॉल्व करने हैं जैसे ही टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में. So this was all about the strategy for both paper 1 as well as paper 2. I hope you enjoyed the session and you got the idea how you need to approach both paper 1 as well as paper 2, ठीक है. So guys, we have launched an MCQ course. आपको पता होगा कि हमने MCQ course launch किया for paper 2 of SEBI grade A legal officer examination, which will consist the entire syllabus of phase 1 as well as phase 2, ठीक है. सारा सिलेबस जो भी आपका सिलेबस में मेंशन है SEBI grade A legal officer एग्जाम के, वो सारे टॉपिक्स आपके फेज 1 एंड फेज 2 के कवर है यहाँ पर MCQ के फॉर्म्स में, चैप्टर वाइज कवर है आपको, ताकि आपको एक चैप्टर फिनिश करने के बाद वो चीजें आप इजीली उस MCQ के थ्रू आप चेक कर सके अपनी प्रिपरेशन का लेवल. सो चैप्टर वाइज MCQs विल बी गिवन टू यू एंड यू विल बी गिवन 500 प्लस फ्री MCQs टू एनालाइज योर प्रिपरेशन लेवल. आप किस तरीके से कहां पे स्टैंड कर रहे हैं उन चीजों को एनालाइज करने के लिए यू विल बी गिवन 500 प्लस MCQs, ठीक है. सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड इफ यू फील इट कंफर्टेबल एंड इफ यू फील इट suitable for your preparation, then you can have it. So this was all about this course, and if you want to know anything or if you want to know the detailed feature of this course, then you can refer the link given in the description box below, right friends. So I hope you got the clarity, you enjoyed the session and you have learned a lot. In case you want to know something else also, so you can let me know, you can make the comment, we will definitely come out with the video which can resolve your query. So this is all for today guys. We'll meet in another session. Till then, goodbye and have a good day friends.